Hello students, myself Shivansh Kumar Singh, PGT Commerce in SS Public School, Siddipur, Jaunpur. Here I would like to give you an information that beside commerce and science stream, from this year one more stream is available for class 11th, that is humanities. The students who are seeking admission in class 11th may rush to our school office for admission purpose at the earliest after the lockdown period. Thank you. Now we will start our class today. That is, in the previous class we have studied about the issuance of share. We have studied the three cases or three stages of the issue of shares, that is issue of share at par, issue of share at premium and issue of share at discount. Practically the issue of share at discount is not feasible, not covered in syllabus, but other two stages are fully applicable for the examination purpose. And today's our topic is subscription. While talking about the subscription, in relation to subscription we heard or we discussed the three words, that is full subscription, under subscription, over subscription and minimum subscription. Let us students, while talking about the subscription, as I have said that there are four types of subscription, but this minimum subscription is not a type of subscription. Instead, it is a provision of the Companies Act regarding अलॉटमेंट के रिगार्डिंग ये प्रोविजन है, न कि ये टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन है. टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन तीन ही होते हैं, दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन. फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज जस्ट अ प्रोविजन रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. दिस इज अ theoretical portion and very much important regarding the exams. In examination, most of the time the theory question is being put about the minimum subscription. Now let us discuss all these four types of subscription one by one. Let us begin now. The first subscription is full subscription. Full subscription. Full subscription means when the number of shares issued is equals to the number of applications received. This is the situation of full subscription. In this case, applications are equal to the number of shares. Questions regarding this situation we have already done. अब तक हमने क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करे हैं बेटा शेयर कैपिटल चैप्टर के, वो सारे ही क्वेश्चन फुल सब्सक्रिप्शंस के थे. सेकंड हमारा टॉपिक है बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन as the name is indicating, in this case the number of applications are less in comparison to the number of shares issued by the company. It means applications are lesser than the number of shares issued. Applications are lesser than the number of shares issued. Please note down one important point in this situation. Note down one important point in case of under subscription. Please note down. In case of under subscription, whenever there is a situation of under subscription, मैंने आपको बताया बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एप्लीकेशंस. फर्स्ट पॉइंट यही हो गया आपका, एप्लीकेशंस
or the shares are lesser than the number of shares issued. सेकेंड पॉइंट जो मैं नोट करने के लिए आपको बोल रहा था, इन दिस केस all the entries, all the journal entries, all the entries are made with the number of applications received. सारी एंट्री जो है नंबर ऑफ एप्लीकेशन से होंगी. यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इररिलेवेंट हो जाता है, इट्स ऑफ नो यूज. फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी हैव इशूड 10,000 शेयर्स, these are the number of shares, and the applications were received for 8,000 shares. ये आपकी applications हैं. This is the situation of under subscription. Number of shares issued 10,000 and the number of applications received 8,000. All the entries means the entry of application, allotment, and various calls, maybe 2 calls. All these entries regarding the application, allotment, first call, second and final call will be done along with the applications. 8,000 नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को लेके ही हमें सारी एंट्री करनी है. यहाँ पर इस सिचुएशन में आपके नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इररिलेवेंट होते हैं. Let us do the question now. Question of under subscription. देखिए बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन का हमारा क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों ने नोट किया है. X Limited was registered with a capital of rupees 10 lakh in shares of rupees 10 each. It issued prospectus inviting application for 20,000 shares. बेटा applications जो है यहाँ पर number of applications हैं इस क्वेश्चन में 20,000. इन 20,000 applications पर हम 2 रुपये एप्लीकेशन पर मांग रहे हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं, और बोला है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. 2 और 4 6 रुपये हो गया. 10 रुपये का एक शेयर था, 6 रुपये हम मांग चुके हैं, बचे हमारे 4 रुपये. तो 4 रुपये का हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया. इस तरह से हमारी ये फेस वैल्यू पूरी हो गई. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 90,000. तो ये जो है आपका ये नंबर ऑफ शेयर इशूड है बेटा. नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है और एप्लीकेशंस है आपकी 19,000. नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी 20,000 and application is 19,000. This is the situation of under subscription. In case of under subscription, all the entries are made with the number of applications received. इससे ही हम सारी एंट्री करेंगे बेटा. 19,000 into 2 at the time of application, 19,000 into 4 at the time of allotment, 19,000 into 4 at the time of first and final call. In this situation, the number of shares issued by the company becomes irrelevant. Let's do the question now. देखिए बेटा, अब हम इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्री कर लेते हैं जैसे हमने करा है अब तक, जैसे सीखा है. सिंपल है क्वेश्चन. अब हमें बस अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को लेकर चलना होता है, ये आपको याद रखना है. तो पहली एंट्री मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पर पहली एंट्री हम बेटा रिसीव की करते हैं. रिसीव की एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 19,000 इंटू 2, ये हो गया बेटा आपका 38,000 से 38,000। ड्यू की एंट्री कर लीजिए बेटा, हमने आपको पहले भी बताया था ड्यू की एंट्री करते समय जिस कॉल को भी हम ड्यू करना चाह रहे हैं उसका नाम और क्रेडिट डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री भी हमारी बेटा 38,000 से हो जाएगी। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, भले ही बेटा कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू करे थे, लेकिन जब एप्लीकेशन ही हमारी 19,000 के लिए आई है तो 19,000 से ही हमें सारी एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पर कंपनी की मजबूरी है, जब हमारा शेयर्स बिका ही नहीं मार्केट में तो जितना बिका है उसी से ही सारी एंट्री होंगी। अब हम अलॉटमेंट की भी एंट्री बेटा इसी 19,000 से करेंगे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री 19,000 से ही करेंगे। देखिए बेटा अलॉटमेंट की एंट्री हमारी बेटा आपको याद होगा एप्लीकेशन के टाइम पर हम पहले रिसीव की एंट्री करते हैं और बाद में ड्यू की एंट्री करते हैं। बट एप्लीकेशन की एंट्री करने के बाद हम सबसे पहले अलॉटमेंट की एंट्री या फर्दर कॉल्स की एंट्री करते समय पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर पहले ड्यू की एंट्री करनी है। अलॉटमेंट की एंट्री करते समय पहले हम अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ड्यू की एंट्री में मैंने आपको बताया जिस किसी भी कॉल की आप ड्यू की एंट्री कर रहे हो तो जिस चीज़ को भी आप ड्यू करना चाहते हैं उसका नाम डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा अलॉटमेंट देखिए कितने रुपए था, 4 रुपये। तो 4 रुपीज़ इंटू 19,000 एप्लीकेशंस आई थी हमारे पास, तो ये हो गया आपका 76,000। 19,000 जो शेयर्स हमारे बिके थे इंटू अलॉटमेंट मनी 4, 76,000। अब रिसीव कर लीजिए, कोई एरियर है नहीं ना कोई एडवांस है, तो जितना अमाउंट ड्यू है बेटा उतना हमें रिसीव हो जाएगा। रिसीव के टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसका भी पैसा हमें मिला है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ये भी एंट्री हमारी 76,000 से हो जाएगी। फिर हमारा बेटा ये क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट आपको बताई नहीं थी, वो हमने डिराइव करी है। शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये थी, 10 रुपये का शेयर था। 10 रुपये के शेयर में हमने 2 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, 4 रुपये हमने अलॉटमेंट में मांगे और इसने बोल दिया है कि बाकी जितना बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होगा। तो बाकी कितना बचा है बेटा, 4 2 6, 10 रुपये में से 6 रुपये हमने मांग लिए तो 4 रुपये बचे, तो ये 4 रुपीज़ का हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। अब हम 19,000 इंटू 4 से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर लेते हैं, ड्यू की और रिसीव की। देखिए बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी ड्यू की एंट्री हो गई बेटा। 19,000 इंटू 4 अगेन हमारा 76,000 हो गया। ये ड्यू की एंट्री हो गई। रिसीव की एंट्री कर लीजिए आप लोग, शेयर्स को रिसीव की एंट्री यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 76,000 से डेबिट और 76,000 से क्रेडिट। तो बेटा ये सिचुएशन थी हमारी
ये सॉल्यूशन हमने किया अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में। फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारी एप्लीकेशंस की नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे कम होते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ज़्यादा होते हैं। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑल द एंट्रीज आर मेड विद द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। सारी एंट्री हम नंबर ऑफ एप्लीकेशन से करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने सारी एंट्री 19,000 से करी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप करके ट्राई करिएगा। वो आपके लिए एक तरह से हमारी तरफ से होमवर्क है। उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, नोट डाउन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा आपके होमवर्क के लिए, इसको आप सेल्फ ट्राई करिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब नेक्स्ट हमारा बेटा टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन बड़ी अजीब होती है कंपनी के लिए। यहाँ पर कंपनी को सोचना पड़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो इशूड हैं उससे ज़्यादा कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। जब आपके सपोज नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हैं हमारे 10,000, इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो एप्लीकेशंस आ गई है बेटा वो आ गई है 12,000। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी बड़ी फंस जाती है कि अब कैसे डील करें। ज़्यादा लोग शेयर्स डिमांड कर रहे हैं और शेयर्स हमारे पास अवेलेबल कम हैं, किसको अलॉट करें किसको ना करें। तो ओवर सब्सक्रिप्शन से डील करने के लिए कंपनी के पास दो तरीके हैं। एक तरीका है बेटा, फर्स्ट मेथड है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, इस मेथड में कंपनी की जो एक्सेस एप्लीकेशंस हैं वो है 2,000। जितनी फालतू हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। जब हम 12,000 में से 2,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे तो हमारे पास एप्लीकेशंस भी 10,000 बची और शेयर्स भी हमारे पास 10,000 अवेलेबल हैं। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 10,000 एप्लीकेशंस के बीच हम 10,000 शेयर्स अलॉट कर देंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो 2,000 एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट करी, ये लोग बुरा मान सकते हैं कि भाई हमने भी अप्लाई किया था, हम भी आगे की कॉल्स देने के लिए रेडी थे, हम भी शेयर्स की जितनी भी कॉल होती उसका पेमेंट करते, तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों की गई। फर्दर कंपनी जब अपना सेकेंडरी इशू लाता है तो ऐसे इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो कंपनी की कहीं ना कहीं इस चीज़ से, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन से कंपनी गुडविल हैम्पर करती है। तो ये कंपनी के लिए बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि कौन सी एप्लीकेशन को हम एक्सेप्ट करें और किसको रिजेक्ट करें। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए कंपनी के पास दूसरा तरीका होता है, दैट इज़ प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट, दैट मीन्स proportionate allotment, ratio allotment, proportionate ratio allotment. In this case, company do not rejects any application. Company try to allot shares to all applicants, although lesser number of shares in comparison to shares applied for are issued in this case. In case of pro rata allotment, the number of shares issued to the applicants are lesser than the number of shares they have been applied for. इस केस में जिसने जितने शेयर्स मांगे उतने ना देके हम उसको प्रोपोर्शनेटली कम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही देख लीजिए, 10,000 हमारे पास शेयर्स हैं, एप्लीकेशंस आ गई हमारे पास 12,000, तो हमारा रेशियो हो गया बेटा 10:12 का। मतलब जिसने 12 शेयर मांगे थे उसको 10 शेयर मिलेंगे, जिसने 120 शेयर मांगे होंगे उसको 100 शेयर मिलेंगे, जिसने 1200 शेयर्स मांगे होंगे उसको
1000 शेयर्स मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है इन्वेस्टर को कि भाई मैंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कम ही सही लेकिन शेयर्स मुझे भी मिले। इस केस में 2000 एप्लीकेंट्स ऐसे थे जो कि टोटली हमने रिजेक्ट कर दिया। वो डिससेटिस्फाइड एप्लीकेंट्स होते हैं, वो बुरा मान जाते हैं इस बात का, कंपनी की गुडविल इससे हैम्पर होती है। सेकंड केस, इसके कंपैरिजन में सेकंड केस ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इस केस में यहाँ पर जितने भी एप्लीकेंट्स हैं शेयर्स हम सबको देते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो नंबर ऑफ़ शेयर्स जितने उन्होंने अप्लाई किए थे उसके कंपैरिजन में कम मिलते हैं, पर मिलते ज़रूर हैं। तो ये दो सिचुएशंस हैं जिससे हम ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन को डील कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि इनका कॉम्बिनेशन भी कंपनी को करना पड़ता है, तो वो हमारी तीसरी सिचुएशन हो गई ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने की। यहाँ पर रिजेक्शन प्लस प्रोराटा अलॉटमेंट, कंपनी दोनों तरीकों को अपनाती है एक साथ। कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करती है और बाकी हुई बची हुई एप्लीकेशंस के बीच में वो प्रोराटा अलॉटमेंट करती है। यानी ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के ओवरऑल हमारे पास बेटा 3 मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। सेकंड हो गया बेटा प्रोराटा अलॉटमेंट, और तीसरा हो गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिजेक्शन प्लस प्रोराटा अलॉटमेंट। बेटा प्रोराटा कंसेप्ट इस चैप्टर में लेंथी कंसेप्ट है। हम इस अभी तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये तीनों सिचुएशन के एक एक क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोराटा का जो टॉपिक है इस चैप्टर में बाद में फिर से यहाँ पे लौटेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स को कवर करने के बाद, जो क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में आपका प्रोराटा अलॉटमेंट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये सारा क्वेश्चन मिक्स हो गया आता है, आपका लेंथी क्वेश्चन होता है। तो इसलिए इस टॉपिक को हमें ओवर सब्सक्रिप्शन को आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक हेयर वी विल पिक अप दिस टॉपिक अगेन लेटर ऑन, एंड later on we will thoroughly discuss this topic along with the forfeiture and reissue of shares. Let us discuss this oversubscription in 3 cases, that is rejection of access application, prorata allotment, and the combination of these 2 points. Let us do the questions now. हमारे पहला रिजेक्शन का केस है, सेकंड केस ओवर सब्सक्रिप्शन में जब हम प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं, और तीसरा केस हमारा, अभी हम आपको तीसरा क्वेश्चन भी देंगे जिसमें ये दोनों मिक्स रहेगा, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा अभी हम रिजेक्शन वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. The whole of the amount was payable on application. The issue was oversubscribed by 5,000, that is applications were received for 25,000 shares. यहाँ पर हमें सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मिलना था। मीन्स ये क्वेश्चन आपका लमसम वाला है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन नहीं है। इसी का इंस्टॉलमेंट भी हो सकता था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्वेश्चन में। यानी बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स इशूड जो थे, शेयर्स हैं 20,000 और एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई हैं 25,000 शेयर्स के लिए। तो बेटा देखिए ये सिचुएशन है ओवर सब्सक्रिप्शन की, और कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि जितनी एक्सेस एप्लीकेशन होंगी उनको हम रिफंड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशंस हैं 5,000 एप्लीकेशंस का पैसा हम रिफंड करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। लेट अस डू द जनरल एंट्रीज ऑफ दिस। आइए जनरल एंट्री करते हैं बेटा। चलिए बेटा देखिए हमारे क्वेश्चन की सिचुएशन ये थी कि एप्लीकेशंस हमारे पास टोटल थी 25,000, शेयर्स हमारे पास थे
जो हमने इशू करे थे वो 20,000, यानी हमारे पास 20,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन 25,000 के लिए आ गई। तो एक्सेस एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई हैं, एक्सेस एप्लीकेशंस हैं हमारे पास 5,000 शेयर्स की। यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन के बेटा हमने 3 केस बताए। ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन से निपटने के लिए कंपनी के पास 3 तरीके हैं। पहला है हमारा रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। दूसरा है बेटा हमारे पास तरीका प्रोराटा अलॉटमेंट, और तीसरा है इन दोनों का मिक्सचर, रिजेक्शन प्लस प्रोराटा। अभी हम जो केस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, रिजेक्शन एंड रिफंड का। तो इस केस में हमें 5,000 एप्लीकेशंस का पैसा लौटाना है, और ये जो शेयर है, इस शेयर 10 रुपये का शेयर है, हमने सारे पैसे एक साथ मांगे हैं, नो इंस्टॉलमेंट। तो यानी ये क्वेश्चन हमारा लमसम मेथड वाला हो गया। तो लमसम मेथड में बेटा हमारी एक ही एंट्री होती है, मैंने आपको बताई थी, और यहाँ पर एक एडिशनल एंट्री आ जाएगी रिफंड की। देखिए एप्लीकेशन की एंट्री करते समय हम सबसे पहले रिसीव की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आप रिसीव की एंट्री करिए एप्लीकेशन के टाइम पर। एप्लीकेशन के टाइम पर हमारी बेटा रिसीव की एंट्री हो जाएगी लमसम मेथड में, इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक साथ हम मांग रहे हैं ना पैसा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब सारा 10 रुपया एक साथ मांग रहे हैं हम। तो हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा आ कितना गया, 25,000 पर आ गया। 25,000 इंटू 10 रुपीज़, ये सारा पैसा हमें इकट्ठा मिल गया। तो 25,000 इंटू 10 हमारा हो गया 2,50,000, 2,50,000। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव लमसम अमाउंट रिसीव की एंट्री हो गई। इसको ड्यू की एंट्री कर देते हैं। ड्यू की एंट्री करते समय देखिए बेटा हमारे पास पैसा आ गया है 25,000 शेयर्स पर आना चाहिए था 20,000 शेयर्स पर। तो इसको हम जो एक्सेस मनी है उसको देखो बेटा कैसे हम दिखाएंगे। यहाँ पे दिखा दीजिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपए से जो हमें पैसा मिल गया है। मिलना कितना चाहिए था बेटा, हमें मिलना चाहिए था 20,000 शेयर्स पे 10 रुपये, 2 लाख मिलना चाहिए था। वो दिखाइए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपए मिलना चाहिए था, और 5,000 शेयर्स पे जो हमें ज़्यादा पैसा मिल गया है, यानी 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपये जो आपको ज़्यादा मिला है ये हमें लौटाना है। तो बेटा रिसीव के टाइम हमने एंट्री ये करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो बेटा रिफंड के टाइम पे इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है। रिवर्स एंट्री हो रही है हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हमने कर ही रखा है, यानी कि इस 2.5 लाख में ये 50,000 रुपये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। टू बैंक कर दीजिए, टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपये से। ये एंट्री हो गई बेटा आपकी रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये हमारी कंबाइंड एंट्री है, इसमें 2 एंट्री शामिल है बेटा। इस एंट्री में हमारी 2 एंट्री शामिल है, एप्लीकेशन मनी ड्यू की और एप्लीकेशन मनी रिफंड की। एप्लीकेशन मनी ड्यू की हमारी एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू बैंक ये रिफंड की एंट्री है 50,000 रुपये से। तो ये जो है हमने कंबाइंड एंट्री करी है। आप चाहें तो इसकी 2 एंट्री कर लीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से एक एंट्री हो जाएगी। एक एंट्री जो 50,000 रुपये बच गए आपके यहाँ पर, उससे कर लीजिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये रिफंड की एंट्री हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पर कंपोजिट कंबाइंड एंट्री करी हुई है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन ऑफ सिचुएशन नंबर 2, दैट इज द pro rata allotment in case of over subscription. Note down the question please.
चलिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो हमारा दूसरा तरीका है ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन से निपटने के लिए, वो है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट पे हम एप्लीकेशंस को प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट अलॉट करते हैं शेयर्स को। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन हमारा, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं? 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है। फेस वैल्यू है ₹10। पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन। ₹4 बेटा हम एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं, ₹3 अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं, और फिर से ₹3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग रहे हैं। एप्लीकेशंस फॉर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 shares on pro rata basis and utilize the excess application money in further calls. All the money duly received pass the necessary journal entry. अब देखिए सिचुएशन यहाँ पर क्या है बेटा, लेट अस डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है बेटा, एप्लीकेशंस हमारे पास जो आ गई हैं इस क्वेश्चन में, वो 60,000 एप्लीकेशंस आ गई हैं, और जबकि नंबर ऑफ शेयर्स जो इशूड हैं वो है 20,000। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर कंपनी पैसा वापस नहीं करती एक्सेस एप्लीकेशन का। वो ये कहती है कि आपको हमने शेयर्स तो अलॉट कर ही दिए हैं, जितना पैसा आपने हमें दिया है आपसे हमें पैसे आगे भी चाहिए, सिर्फ एप्लीकेशन पे थोड़ी चाहिए पैसा। आप ही लोगों से हमें पैसा अभी अलॉटमेंट पे भी चाहिए और कॉल्स पे भी चाहिए। तो इस केस में कंपनी जो है पैसे को रिफंड नहीं करती है, बल्कि जितना भी एक्सेस मनी होता है उसको आगे आने वाली कॉल्स पर एडजस्ट करती है। देखिए इस क्वेश्चन में बेटा, एप्लीकेशन से हमारे पास 60,000 और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20,000। यहाँ पर एक्सेस मनी हमारे पास कितना आया? देखिए यहाँ पर 60,000 के हिसाब से हमारे पास पैसा आ गया होगा 60,000 इंटू ₹4 ऑन एप्लीकेशन है। ₹4 हमारा एप्लीकेशन का है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में आपको देखिए दे रखा है ₹4 ऑन एप्लीकेशन, तो 60,000 एप्लीकेशन पर ₹4, ₹2,40,000 हमारे पास एप्लीकेशन पर आ गए। ये एप्लीकेशन मनी है जो आ गया है, ₹2,40,000। आना कितना चाहिए था भाई? जितने हमने शेयर्स एक्चुअल में इशू करे हैं उस पर हमें एप्लीकेशन आनी चाहिए थी। यानी हमारे पास 20,000 इंटू 4 ₹80,000 आना चाहिए था। पर बेटा आ कितना गया है? सपोज आपने कंपनी से 60,000 शेयर्स मांगे हैं, कंपनी ने इशू किए थे सिर्फ 20,000, तो आपने कंपनी को अप्लाई करने के टाइम पे ₹2,40,000 दे दिए हैं, जबकि कंपनी ने जब 20,000 ही शेयर इशू करे हैं तो 20,000 एप्लीकेशन आनी चाहिए थी उसके पास, यानी एप्लीकेशन का मनी ₹80,000 आना चाहिए था, पर एप्लीकेशन का मनी आ गया है 2,40,000। यहाँ पर कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन जो मनी है वो है एक्सेस मनी 2,40,000 माइनस 80,000। 80,000 तो आना ही चाहिए था, आ गया 2,40,000, तो कितना आ गया हमारे पास ज़्यादा? ₹1,60,000 कंपनी के पास ज़्यादा आ गया है। अब ₹1,60,000 को कंपनी लौटाएगी नहीं। कंपनी कहती है कि भाई इन्हीं 20,000 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट का भी पैसा चाहिए। अलॉटमेंट का पैसा इन्हीं 20,000 शेयर्स पर है ₹3, यानी कंपनी को आगे एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद इन्हीं 20,000 शेयर्स पर कंपनी को ₹3 और चाहिए, यानी कंपनी को चाहिए ₹60,000। तो चिंता की बात ही नहीं है, शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन के टाइम पे ज़्यादा पैसा दे चुके थे। ये ₹60,000 जब देने की बारी आएगी शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स कहेंगे हमारा पैसा आपके पास फालतू पड़ा हुआ है, कितना? 1,60,000।
उसमें से ही आप ले लो ये 60,000। तो कंपनी कहती है ठीक है, हम अलॉटमेंट के टाइम पर आपसे बैंक में कुछ रिसीव नहीं करेंगे, आपका ये जो एडवांस पैसा है, एक तरह से ये एडवांस है हमारा, एडवांस पैसे में से ही हम आपका अलॉटमेंट एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए 60,000 रुपये यहाँ से निकल के कहाँ चले गए बेटा, यहाँ पर एडजस्ट हो गए, अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट हो गए। फिर कंपनी को इन्हीं 20,000 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा चाहिए, वो भी फिर से 60,000 रुपये, 3 रुपये फिर से, तो 3 रुपये कंपनी को चाहिए बेटा दोबारा से 60,000 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो वो भी पैसा कंपनी कहाँ से ले लेगी, आपका जो एडवांस जमा है वहाँ से ले लेगी, इसी पैसे को एडजस्ट हो गया। यानी हमारे 1,60,000 रुपये में से हमने अपना पूरा अलॉटमेंट एडजस्ट करवा दिया, हमने अपना पूरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एडजस्ट करा दिया, 1,20,000 रुपये हमारे एडजस्ट हो चुके हैं। अब भी कंपनी के पास हमारे कितने पैसे बाकी हैं, 1,60 में से 1,20,000 रुपये हमारे एडजस्ट हो चुके हैं। अब भी कंपनी के पास 40,000 रुपये फालतू आपके पड़े हुए हैं। ये पैसा जो अब भी कंपनी के पास फालतू है, आपकी सारी कॉल पे हो गई, उसके बावजूद भी कंपनी के पास जो पैसा फालतू पड़ा हुआ है आपका, वो कंपनी आपको तुरंत वापस करेगी, रिफंड होगा आपका ये पैसा आफ्टर मेकिंग ऑल द कॉल्स। लेट्स डू द जनरल एंट्री ऑफ दिस केस। आइए जनरल एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस अमाउंट से एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन मनी 2,40,000 है ना, तो फर्स्ट एंट्री आप कर दीजिए। फर्स्ट एंट्री हमारी एप्लीकेशन के टाइम पर हो जाएगी बेटा। एप्लीकेशन के टाइम पर देखिए, एप्लीकेशन के टाइम पे हमारी रिसीव की एंट्री हम पहले कर रहे हैं। रिसीव की एंट्री हो गई हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000 रुपये से 2,40,000। ड्यू की एंट्री देखिए, ड्यू की एंट्री देखिए बेटा, ड्यू की एंट्री में जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो पैसे आने चाहिए 20,000 शेयर्स के आने चाहिए, लेकिन आ गए हैं हमारे पास बेटा 60,000 शेयर्स एप्लीकेशंस, ये आ गए हैं। आने चाहिए 20,000 इंटू 4 80,000। तो देखिए बेटा, जो आने चाहिए थे वो पैसा हम क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो एक्सेस पैसा आपके पास आ गया है उसको आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। एक्सेस पैसा हमारे पास कितना था, 1,60,000। 1,60,000 हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, और 80,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। टोटल इन दोनों का हो गया हमारा 2,40,000। देखिए हमारी ड्यू की एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बेटा हम इसका ट्रीटमेंट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ना करके एप्लीकेशन से ही कर सकते थे, लेकिन आप बेटर है कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर दीजिए, और फिर रेस्पेक्टिव कॉल आने के टाइम पर यहाँ से हम पैसा निकाल के एडजस्ट कर देंगे। देखिए अभी हम करा रहे हैं आपको। ये हो गया आपका 2,40,000 जो पैसा हमें मिल गया है। मिलना कितना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था 80,000, क्योंकि हमने शेयर्स तो 20,000 ही इशू किए थे, और मिल गया हमें 60,000 के हिसाब से 2,40,000। मिलना चाहिए था इसके हिसाब से 80,000। जो एक्सेस मनी है 1,60,000 रुपये, वो हम डाल देंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इस पैसे को क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अलॉटमेंट की डेट तो आई नहीं है, पर उसका पैसा हमारे पास आ चुका है। अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डेट तो आई नहीं है, लेकिन उसका पैसा हमारे पास आ चुका है। इस पैसे से ही हम
अलॉटमेंट को एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को एडजस्ट करेंगे, और सारी कॉल्स और अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है कंपनी के पास तो वो पैसा हम शेयर होल्डर्स को वापस कर देते हैं। तो ये एंट्री हमारी पहली हो गई बेटा एप्लीकेशन की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। देखिए अलॉटमेंट की एंट्री, ध्यान रखिएगा हमने जितना हमारे पास एक्सेस पैसा था वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रखा है। सेकेंड एंट्री हम कर रहे हैं बेटा अलॉटमेंट की, ध्यान से देखिए एंट्री को, अलॉटमेंट की। अब क्योंकि अलॉटमेंट की एंट्री है तो पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं। सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन के टाइम पर पहले हम रिसीव की एंट्री फिर ड्यू की एंट्री करते हैं। इसके बाद जितनी भी हमारी इंस्टॉलमेंट्स होंगी पहले ड्यू फिर रिसीव। पहले अब हम ड्यू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा अलॉटमेंट पर हम उतना ही पैसा एक्सपेक्ट करेंगे जितना हमने शेयर्स इशू करे थे। हमने तो 20,000 शेयर इशू करे थे और अलॉटमेंट का मनी था हमारा 3 रुपीज़ पर शेयर। तो कंपनी को जो एक्सपेक्टेशन है कि अलॉटमेंट के टाइम पर हमारे पास 60,000 रुपये आ जाना चाहिए। अब हम रिसीव की एंट्री करेंगे। अब हम जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर बैंक में कुछ नहीं आएगा, बैंक में पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? बैंक में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अलॉटमेंट का सारा पैसा ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था जब हमने एप्लीकेशन की एंट्री करी थी। एप्लीकेशन के टाइम पर जो आपने बैंक की एंट्री करी है 2,40,000 रुपये, वहाँ पर बैंक की एंट्री होनी तो चाहिए 80,000 रुपये, पर आपने करी 2,40,000 रुपये, यानी 1,60,000 रुपये आपको फालतू मिला था वहाँ पर एडवांस। वही आपने जो फालतू पैसा एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आपने ट्रांसफ़र कर दिया था कॉल्स इन एडवांस में। अब जो वो फालतू पैसा है वहाँ से निकाल कर यहाँ एडजस्ट करो आप। तो यानी वहाँ जो हमारा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने क्रेडिट किया था एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री में, उसमें से हम 60,000 रुपये निकाल लेंगे। निकाल लीजिए बेटा, यहाँ पर वो एंट्री डेबिट हो जाएगी। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हो गई बेटा आपकी 60,000। अब हमारी जो एप्लीकेशन के टाइम पर हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट किया था बेटा, एक बार नज़र डाल लीजिए आप वहाँ पर हमने अमाउंट डाला था 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये में से ये हमने 60,000 रुपये निकाल लिए। अब उस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है सिर्फ 1,00,000 रुपये का, 60,000 हमने यहाँ निकाल लिया है। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री भी हम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले ड्यू कर देते हैं फिर रिसीव कर लेते हैं। देखिए इक्विटी शेयर, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हमें 20,000 शेयर्स पे 3 रुपये चाहिए, यानी 60,000 रुपये। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये से और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 रुपये से। ये हमने ड्यू की एंट्री कर ली। अब फिर से बेटा हमें इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 60,000 रुपये चाहिए। हमारे पास अभी एडवांस अकाउंट में 1,00,000 रुपये बाकी है। शुरू में हमने 1,60,000 रुपये क्रेडिट किया था, अलॉटमेंट के टाइम में पे उसमें से हमने 60,000 रुपये निकाल लिया। अब हमारे पास उस एडवांस अकाउंट में 1,00,000 रुपये बाकी है। फिर से आप निकाल लीजिए 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये हम फिर से निकाल लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, किसके पैसे आप एडजस्ट कर रहे हो? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ये भी निकाल लीजिए बेटा, ये हो गया 60,000। तो यानी हमारे पास 1,00,000 का बैलेंस था, उसमें से 60,000 हमने फिर से निकाल लिया।
तो अब हमारे पास कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में जो बाकी है पैसा, वो सिर्फ 40,000 रुपये बाकी है। वो 40,000 रुपये हमें निकाल के वापस कर देना है। तो आइए हम उसकी रिफ़ंड की एंट्री कर देते हैं। जो 40,000 रुपया हमारा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में बाकी है, उसको निकालिए और वापस कर दीजिए। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमारी रिफंड की एंट्री हो गई 40,000। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन था। ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन से निपटने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। दूसरा हमारे पास प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तीसरा बेटा रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन प्लस प्रोराटा अलॉटमेंट, इन दोनों को हम मिला के करते हैं। ये क्वेश्चन अभी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अब बात आती, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमने आपको 4 वर्ड्स डिस्कस करे थे। एक था आपका फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन अंडर सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 होता है। इट इज़ अ लॉ प्रोविज़न रिगार्डिंग द अलॉटमेंट। इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हमने एक सेपरेट वीडियो इस चैप्टर की बनाई है, जिसमें हम शेयर कैपिटल चैप्टर के पूरी थ्योरी आस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। आपने भी देखा होगा कि इस चैप्टर को कवर करते समय हमने थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है। इस चैप्टर में जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, चाहे वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो, चाहे आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो, या टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कंडीशंस रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ शेयर्स है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं इस चैप्टर के, जिसकी वीडियो हमने सेपरेट बना रखी है। आप उस वीडियो को देखिएगा, अभी हम अपलोड कर देंगे, जिससे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन अलग से कवर होगा। यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच ही लेके चल रहे हैं। तो बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो तीसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वो इन दोनों सिचुएशन का मिक्स है, यानी टोटल एप्लीकेशंस जो हमें रिसीव होती हैं उसमें से कुछ एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, बाकी बची हुई एप्लीकेशंस के बीच हम प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास, ऑल द बेस्ट।